Good morning, students. Today in English, again we are going to continue the exercise in test book, okay? In page number 88. Write down the classwork and date 22 to 2021, okay? Learn new words. LEARN. Learn. NEW. New. WORDS. Words. Learn new words. We are going to do the exercise in the test book. We are going to learn some few new words and exercise also with that. READ. Read. THESE. These. SEN. TEN. CES. Sentences. Read these sentences. We are going to read this sentence and then we are going to do the exercise. Number 1, grandma. GRANDMA. Grandma is. 2, grandpa. 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 S, mother is to father. MOTHER. Mother. IS is to FATHER. Father. We are going to learn the words in pair. Grandma, that means grandma is to grandpa. Grandma and grandpa are pair of persons. दादा एंड दादी. दादी के साथ दादा होते हैं तो दादी. ग्रैंडमा मीन्स दादी या नानी. ग्रैंडपा मीन्स दादा या नाना. एज मदर इज टू फादर. मदर यानी मम्मी. फादर यानी पापा. मम्मी के साथ पापा होते हैं, जैसे नानी के साथ नाना, मम्मी के साथ पापा. ग्रैंडमा इज टू ग्रैंडपा एज मदर इज टू फादर. यानी ये पेयर ऑफ वर्ड्स है जो हम साथ में अभी लर्न करेंगे. स्पेक्टेकल्स. स्पेक्टेकल्स आर टू केस. CASE. स्पेक्टेकल्स यानी चश्मे. रीड करिए स्पेलिंग. SPECTACLES. स्पेक्टेकल्स आर टू केस. केस यानी जिसमें हम चश्मे अपने रखते हैं, बॉक्स होता है ना, उसको इंग्लिश में केस बोलते हैं. CASE केस. एज पिल्लो इज टू पिल्लो कवर. पिल्लो यानी तकिया. PILLOW. पिल्लो इज टू पिल्लो कवर. PILLOWCOVER. कवर. पिल्लो कवर यानी पिल्लो पे जो हम कवर चढ़ाते हैं. स्पेक्टेकल्स आर टू केस एज पिल्लो इज टू पिल्लो कवर. ये भी पेयर में है वर्ड्स. स्पेक्टेकल्स आर टू केस यानी केस में उसका जो स्पेक्टेकल्स का बॉक्स होता है उसी में ही हम चश्मे रखते हैं. और पिल्लो इज टू पिल्लो कवर यानी पिल्लो के साथ पिल्लो कवर भी होता है. देन वी आर गोइंग टू रीड सम न्यू पेयर्स. मैच करेक्टली. MATCH. मैच. CORRECTLY. मैच करेक्टली यानी हम मैच करने जाएंगे. अभी वर्ड्स पहले लर्न करते हैं फिर मैच करते हैं. BOOK. बुक. TIGER. टाइगर. PIGEON. pigeon. BUTTERFLY. butterfly. LION. lion. CAMEL. camel. PIANO. piano. FISH. fish. Again I am reading the words. Book, tiger, pigeon, butterfly, lion, camel, piano, fish. Then see the next words. NEST. nest. DEN. dem. STUDENT. student. SWIM. swim. MUSICIAN. musician. STRIPES. stripes. FLY. fly. HUMP. hump. Nest, den, student, swim, musician, stripes, fly, hump. Now see, pair of words are given here and the other side some few words are there. We have to match this properly. Book. Book we have to match with student. Book किससे मैच करेंगे? स्टूडेंट के साथ. देखो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको पेयर करके मैच करना है. Book is to student. We have matched like this. Tiger. Tiger where it lives. और what we can match with it. हम किससे मैच करेंगे? टाइगर के बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं ना, गोल्डन येलो का टाइगर होता है और उसके बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं. तो हम लोगों ने मैच किया स्ट्राइप्स. ये मैच्ड योर टाइगर विथ स्ट्राइप बिकॉज ब्लैक स्ट्राइप्स आर देयर ऑन इट्स बॉडी. ओके. Pigeon. Pigeon. Where does pigeon live? Pigeon lives in nest.
Butterfly. Butterflies fly. They always fly in the sky or near the gardens on flowers. Lion. Lion lives in den. Lion, lion, den, den. Then camel. Camel has a hump. उसकी बॉडी पीठ पे होता है ना बड़ा सा हम्प उपसा हुआ, तो कैमल के बॉडी पे हम्प होता है तो हम उसके साथ हम्प मैच करेंगे. पियानो. पियानो कौन बजाता है? तो म्यूजिशियन. पियानो इज प्लेड बाय अ म्यूजिशियन. एंड फिश. फिश swim in water. So these are the pair of words we are going to work out in blanks. Again we are reading it out. Book with student, student, student. BOOK, book, student. Tiger, stripes. Pigeon, nest. Butterfly, fly. Lion lives in den. Camel has hump on its body. Piano, musician. And fish, swim. Now we are going to use these words in the blanks. Now see here. NOW. Now FILL. Fill in the blanks. BLANKS blanks to complete. COMPLETE complete these sentences. Sentences are given. Now with these words we are going to complete the blanks. Okay. Number 1. Lion is to den. See, we have matched lion with den. As pigeon is to. Lion lives in den. Lion कहाँ पे रहता है? Den में. तो pigeon कहाँ पे रहता है? Pigeon के साथ हमने क्या मैच किया है? Pigeon is to nest. So here we are going to write pigeon is to nest. NEST, nest. Lion is to den as pigeon is to nest. LION, lion is to den. Lion lives in den. We have matched it already here. So the same way pigeon lives in nest. Pigeon, where we have matched it with nest. So pigeon is to nest. Tiger is to dash as camel is to dash. Then how we are going to write it? Tiger. Tiger, what we have matched with tiger? Tiger is to stripes. So here we are going to write with stripes. STRIPES. STRIPES, stripes. Tiger is to stripes as camel is to, see here what we have matched with, camel is to hump. HUMP, hump. Tiger is to stripes as camel is to hump. HUMP, hump. Next line. Book is to, what we have matched with book? Book is to student. STUDENT, student. Book is to student as, see here, piano is to musician. Here blank is given and musician is given, is to musician. So we will write here piano. PIANO, piano is to musician. Butterfly is to, butterfly, what do butterfly do? Butterfly is to fly. Butterfly is to fly as, see here, fish we have matched with swim. Fish is to swim. Butterfly is to fly as fish is to swim. FISH, fish is to swim. Again I am reading out. Lion is to den as pigeon is to nest. Lion lives in den and pigeon lives in nest. टाइगर इज टू स्ट्राइप्स. टाइगर की बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं ब्लैक कलर के और कैमल के बॉडी पे क्या होता है? हम्प. यानी जो कैमल के पीठ पे एक बड़ा सा उपसा हुआ पार्ट होता है हम्प, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हम्प. बुक इज टू स्टूडेंट. बुक इज टू स्टूडेंट. बुक कौन रीड करता है? स्टूडेंट. एज पियानो. पियानो कौन बजाता है? म्यूजिशियन. पियानो इज टू म्यूजिशियन. बटरफ्लाई इज टू फ्लाई. बटरफ्लाई फ्लाई करती है. एज फिश इज टू स्विम. फिश वो पानी में स्विम करती है, वाटर में स्विम करती है फिश. सो अगेन आई एम रीडिंग. लायन इज टू डेन एज पिजन इज टू नेस्ट. टाइगर इज टू स्ट्राइप्स एज कैमल इज टू हम्प. बुक इज टू स्टूडेंट एज पियानो इज टू म्यूजिशियन.
Butterfly is to fly as fish is to swim. This you have to write and by heart it out. Okay, then we are going to do the next exercise. Writing skills. WRITE, right? WRITING, writing SKILLS, skills, writing skills. Look at the pictures and complete the story. By seeing these pictures, we have to complete these blanks. Okay, see, the girl is crying and the boy is standing and near him he is explaining him not to cry. Then he is finding something in the cupboard, under the table, then on the bed, and the girl is happy with the doll. Now see, we are going to complete the blanks here. Beena is, this girl's name is Beena. Beena इसका नाम है. वो क्या कर रही है? वो रो रही है. So Beena is crying. CRYING, crying. यानी वो रो रही है. Crying का मतलब है रो रही है. Beena is crying. She has lost her dash. बीना के हाथ में देखो लास्ट में डॉल है, तो क्या खो गया है इसलिए रो रही है? डॉल. She has, SHEC, यानी बीना को मेंशन किया. हैज़ लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खो जाना. हर डॉल, उसने अपनी गुड़िया को खो दिया है. She has lost a doll. So we are going to write here DOLL, doll. C, SHEC, asks, ASKS, asks यानी पूछ रहा. Aban, the name of the boy is Aban, AMAN. Aban, to help her, HELP, help her, look for it, HER, her, LOOK, look for it. यानी वो अमर से पूछ रही है कि मुझे हेल्प करो डॉल ढूंढने में. सी आस्क्ड अमर टू हेल्प हर लुक फॉर इट. वो अमर को बोल रही है, पूछ रही है कि मुझे हेल्प करोगे. ही आस्क्ड हर, अमन पूछ रहा है. ही मतलब यहाँ पे अमन, ही आस्क्ड यानी पूछ रहा है. हर, HER, हर मतलब बीना को पूछ रहा है. वेयर डिड यू, WHER, where did, DID, did you last, again the words can't be complete here, so I am writing it again. Where did you last see your doll. यानी वो पूछ रहा है कि कहाँ तुमने लास्ट में उस अपनी डॉल को देखा था. वेयर मतलब कहाँ. डिड यू लास्ट यानी लास्ट में आप तुमने कहाँ अपनी डॉल को. योर डॉल मतलब तेरी डॉल को देखा था. वेयर डिड यू लास्ट सी योर डॉल. वेयर डिड यू लास्ट यानी लास्ट में कहाँ पे, अंत में कहाँ पे देखा था. खेलते खेलते तुमने रख दिया था, पर लास्ट में उसके कहाँ देखा था. सी योर डॉल मतलब कहाँ अपनी डॉल को देखा था. फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और इन्वर्टेड कॉमा. सी आंसर्स, SHECANSWERS, आंसर्स यानी वो उसको जवाब दे रही. सी आंसर्स. आई पुट इट, देखो वो कबर्ड के पास देख रहा है. आई पुट it in the cupboard. cupboard, BOARD, board, CUPBOARD, cupboard. देखो वो अमन उसके कपबोर्ड में ढूंढ रहा है डॉल को. सी आंसर्स यानी वीना आंसर करिए कि मैंने उसको लास्ट में अपने कपबोर्ड में रखा था. आई पुट इट इन द कपबोर्ड. आई पुट इट इन, IT, it in the cupboard. CUPBOARD, cupboard. I put it in the cupboard. Then Aman looks, AMAN LOOKS, looks. Aman looks in, in the cupboard. CUPBOARD, cupboard. I
अमन लुक्स इन द कपबोर्ड, देखो वो कपबोर्ड में ढूंढ रहा है। अमन लुक्स इन द कपबोर्ड। द डॉल, क्या नहीं मिला उसको? द डॉल इज नॉट, NOT नॉट, इन द कपबोर्ड, CUPBOARD, कपबोर्ड। डॉल कपबोर्ड में भी द डॉल इज नॉट इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड में भी उसको डॉल नहीं मिली। अमन देन, AMAN, अमन देन लुक्स, देन यानी उसके बाद, लुक्स, LOOK, लुक्स, देखो वो कहाँ देख रहा है? टेबल के नीचे। अंडर, UNDER, अंडर ये मतलब नीचे, अंडर द टेबल, TABLE, टेबल। अमन कहाँ पे देख रहा है? अमन देन लुक्स अंडर द टेबल। द डॉल is not there, the doll is not there, देखो टेबल के नीचे भी डॉल नहीं है। The doll is not there. We have completed this line. The next line you see it. Aman then looks. AMAN THEN then looks. LOOKS looks. अमन फिर नेक्स्ट पे कहाँ पे देख रहा है? बेड में। अमन then looks on the bed. ONTHE the BED bed. वो बेड पे देखता है तो वहाँ पे देखो डॉल दिख रही है। अमन देन लुक्स ऑन द बेड, द डॉल इज ऑन द बेड, डॉल बेड पे दिख रही है, इसलिए हमें कंप्लीट करना है। द डॉल, DOLL, डॉल इज ऑन द बेड। BINA, बीना इज वेरी, BINA, बीना इज वेरी हैप्पी, बीना डॉल को देख के खुश हो जाती है। सी सेज, SHEECSAYS सेज, थैंक यू अमन, THANK, थैंक, YOUU, थैंक यू अमन, AMAN, वो अमन को थैंक्स बोल रही है। जब उसको डॉल मिल जाता है बीना बहुत खुश हो जाती है और लास्ट में उसे अमन को थैंक्स बोला। मैं फिर से रीड कर रही हूँ। बीना इज क्राइंग, सी हैज़ लॉस्ट अ डॉल, सी आस्क्ड अमन टू हेल्प हर लुक फॉर इट, ही आस्क्ड हर वेयर डिड यू लास्ट सी योर डॉल। सी देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। सी आंसर्स, आई पुट इट इन द कपबोर्ड, CUPBOARD, कपबोर्ड, यानी वो बोल रही है कि मैंने लास्ट में कपबोर्ड में रखा था। अमन लुक्स इन द कपबोर्ड, अमन कपबोर्ड में ढूंढ रहा है। द डॉल इज नॉट इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड में भी उसे डॉल नहीं मिलती है। अमन देन लुक्स अंडर द टेबल, वो टेबल के नीचे भी ढूंढ रहा है, वहाँ पे भी नहीं है। द डॉल इज नॉट देयर। अमन देन लुक्स ऑन द बेड, बेड पे अमन को डॉल दिख रही है, वो बेड पे जब दिखता है तो डॉल वहाँ पे है। द डॉल इज ऑन द बेड, बीना इज वेरी हैप्पी, बीना खुश हो जाती है। सी सेज थैंक यू अमन, क्योंकि अमन उसे डॉल ढूंढने में हेल्प कर रहा था इसलिए वो अमन को थैंक्स बोलेगी। ये है इस आज की स्टोरी जिसे हम कंप्लीट कर लिया है। ओके, ये आपको फिनिश करना है। गुड बाय।